considered one of the most dangerous countries to be born as a woman. India has a high rate of women-related crimes, rape being one of the most common and serious issue. इसका कारण है lack of proper administration, lack of public safety, domestic violence को accept करना, rape victims को compromise करने बोलना, and most importantly, the lack of the knowledge of constitutional rules. क्या stalking जो बॉलीवुड के हिसाब से बहुत legal and romantic है, actually legal है? क्या एक लड़की सेल्फ डिफेंस में अपने रेपिस्ट को जान से मार सकती है? क्या मैचुअल रेप लीगल है? क्या आपको पता है कि हर लड़की के पास एक राइट ऑफ अनोनिमिटी होता है जिसे यूज करके वो एक रेप कंप्लेंट विदाउट रिवीलिंग हर आइडेंटिटी कर सकती है? ऐसे बेसिक लेवल के इंफॉर्मेशन की नॉलेज रखना हर लड़की के लिए बहुत जरूरी है जिससे वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 375 से 376 में रेप्स के बारे में बताया गया है। ओवर द इयर्स रेप्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में 3 मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहला सन 1983 का मथुरा रेप केस। इस एक्ट के कारण बर्डन ऑफ प्रूफ वाज मूव्ड फ्रॉम द विक्टिम टू द अक्यूज्ड, यानी अब ये वो अक्यूज की जिम्मेदारी है कि वो प्रूफ करे कि वो कैसे निर्दोष है और ना ही वो विक्टिम की। दूसरा निर्भया रेप केस व्हिच रिजल्टेड इन द निर्भया एक्ट 2013। इस एक्ट के कारण रेपिस्ट पे और स्ट्रिक्टर punishments imposed कर दिए गए। New offenses like stalking, acid attack were included in the Indian Penal Code. The punishment of acid attack was made minimum 10 years of imprisonment to lifetime imprisonment. Sexual harassment जैसे forcibly pornography दिखाना या unwelcome physical advances, voyeurism meaning watching or clicking pictures of a woman when she's performing any private act, example changing clothes in a changing room. And stalking की punishment minimum 1 year of imprisonment to 3 years of imprisonment कर दी गई, and the age of the juvenile was reduced from 18 years to 16 years. Thirdly, कथुरा रेप केस 2018 जिसमें एक माइनर का रेप हुआ था। इसके कारण punishments were made harsher for the rape of minors, and most importantly it made provisions for speedy investigations. बोल दिया गया कि इन्वेस्टिगेशंस मैक्सिमम 2 महीने, ट्रायल्स मैक्सिमम 2 महीने एंड डिस्पोजल ऑफ अपील 6 months में हो जाने चाहिए। Coming back to the question, that can a woman kill her rapist in order to protect herself? Yes, she can kill the rapist, but only in the cases where there is threat to her life. Example, where the rapist uses any sharp objects to threaten the victim. ये सारे बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स हैं, बट इन सब में थोड़े लूप होल्स भी हैं। इंडिया इज वन ऑफ द 36 कंट्रीज जहाँ मैरिटल रेप अभी तक लीगल है। All this has to change, and this can only happen if we, the citizens, become responsible enough and get things working. Keeping this aside, we can say that Indian Constitution has provided the women with a lot of rights to defend themselves. But it is also very important to understand that these rights must not be misused. We should use this as a shield and not as a sword. Physical torture, sexual violence, mental harassment. महिलाओं ने समय से पहले ही इनका सामना किया है। भारत और दुनिया के हर दूसरे देश में महिला अधिकारों का उल्लंघन अभी भी आम है। महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को प्रभावी ढंग से चुनौती दी जा सकती है कानूनी तौर पर, अगर सामाजिक रूप से नहीं। ऐसे कई कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं को भेदभाव, उत्पीड़न, हिंसा ऐसे विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। Women have the right to equal pays. समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत वेतन या मजदूरी की बात होने पर किसी को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। Women have the right to dignity and decency. इस घटना में कि आरोपी एक महिला है तो उस पर किसी भी मेडिकल जांच प्रक्रिया को अन्य महिला के उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए। Women have the right against workplace harassment. कार्यस्थल अधिनियम में एक महिला को कार्यस्थल पर होने वाली उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। Women have the right against domestic violence. भारतीय संविधान की धारा 498 में पत्नी, महिला लिव इन पार्टनर या गृहस्थी में रहने वाली किसी भी महिला जैसे माँ, बेटी, बहन को घरेलू हिंसा, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, वर्बली या इवन फाइनेंशियली हो, जिसमें पति, पुरुष या रिश्तेदार का हाथ हो,
तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। Women have a right to register virtual complaints। कानून महिलाओं को ईमेल द्वारा आभासी शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। इसके अलावा SHO शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस कांस्टेबल को उस स्थान पर भेजता है। ऐसा तब होता है जब महिला शारीरिक रूप से किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करने की स्थिति में ना हो। Women have the right against indecent representation। किसी भी महिला को उसके किसी भी रूप या किसी भी अंग को किसी भी तरह अभद्र, अपमानजनक या सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करने, घायल करने या कम करने की संभावना पर निर्भर करना एक दंडनीय अपराध है।